ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت بن امام رضی اللہ عنہ کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے شخص کا کوئی قرضہ وغیرہ حق ہو اور اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے، یعنی رکا رہے، تو اس کو ہر دن کے بدلے میں صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کی اس دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج گڑگڑاہٹ سنتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم تقتم ولا تمغز به بغضبک وتہلکنا آفنا قبلک عذابک۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ختم مت کر اور اپنے عذاب سے مجھے ہلاک مت کر اور عذاب سے پہلے عافیت عطا کر۔ بادلوں کی گرج کا دعا ہے یہ۔ ایک حدیث پاک کا پیغام ہے، حضرت بن عبداللہ پیغام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے 1000 قرآن شریف پڑھ لیا کرے۔ صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ روز کس نے پڑھے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الحاق کو متقاصر پڑھ لیا کرے کہ اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی بہن پڑھیے، یہ 4 چیزیں ہیں جو اگر کسی کے اندر ہے، کون سی 4 چیزیں ہیں؟ بات کرے تو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور لڑائی یا جھگڑا ہو جائے تو غالی اور گروج کرے، بد کلام کرے، گندے الفاظ کے استعمال کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے کیا کہا؟ وہ پکے منافق ہے، وہ 100% منافق ہے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ 4 چیزیں اس کے اندر پوری نہیں، یہ 3 چیزیں ہیں، تو یہ 3 درجے کا منافق ہے، 75% منافق ہے۔ 2 درجے کا ہے، 2 کوالٹی ہے تو 50% منافق ہے۔ اگر 1 ہے اس کے اندر ہے تو کتنے پرسنٹ اس کے اندر؟ 1%۔ اپنے آپ کو پہلے چیک کرو۔ یہ 4 چیزیں، یہ ایک حدیث مکمل ہو گئی۔ آپ ایک آیت کی طرف آئیے، بہت مختصر رکھ کے میں انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گی۔ آیت منافق کو تعلق سے آیت بہت ساری ہے، لیکن کیونکہ حدیث رکھی گئی، کیونکہ منافق تھا، آپ کے سامنے میں ایک آیت رکھ دوں۔ میری اور آپ کی جو کمزوریاں ہیں نا، منافقہ کا جو کمزوری ہے نا، آج ہمارے اندر ہے، وہ نظر آ رہی ہے، ہماری زندگی میں نظر آ رہی ہے، ہمارے نفسوں میں بھی نظر آئی ہوگی۔ میں بھی وہ آپ کے درمیان رکھ رہی ہوں۔ اب اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 142، یہ آیت بہت اہم آیت ہے نا۔ گھر میں جا کے ذرا آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک کرنا ہے کہ یہ آیت تفسیر سے پڑھیے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا، پڑھیے گا ضرور۔ آیت وہ کون سی سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ نے اس آیت میں منافق کی 3 صفت بیان کی ہے۔ اللہ نے ایک آیت میں 3 صفت بیان کی۔ پہلی صفت وَإِذَا خَلَقَهُمُ الصَّلَاةَ مُقَصَّالًا، اور ان کی پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ اس پہ غور کریں، نماز چھوڑتے نہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سستی کے ساتھ۔ کون؟ منافقین۔ منافق میں ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز کو چھوڑے، وہ آتے تو تھے لیکن سستی کے ساتھ آتے تھے، لیکن پہلے صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ منافق ہے۔ پہلی صفوں میں ہوتے تھے، پہلی صفوں میں نماز کے لیے آتے تو پہلی صفوں میں ہوتے تھے، وہ سستی کے ساتھ آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے ہماری زندگیوں میں کتنی نمازیں چلی گئی، کتنی نماز چلی گئی۔ یاد رکھیے یہ 5 یہ آکسیجن ہے اور روح ہے، جو جسم میں روح ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں وہ زندہ رہے نا تو اس کی آکسیجن کیا معلوم؟ یہ رب العالمین کی عبادت ہے، یہ نماز ہے، جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث، وَالْعَبْدِ وَالْكُفْرِ الصَّلَاةُ، ایک کافر، ایک مشرک، ایک جہنمی اور ایک مسلمان، ایک جنتی کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر ہماری نمازوں کا حال 1 پڑھتے 1 چھوڑ دیتے ہے نا، 2 پڑھتے 3 پڑھتے چھوڑ دیتے، تو یہ حال ہے نا۔ اگر اس دن 5 پڑھ دیے تو ان سے بڑے کوئی ولی آئے بھی نہیں کیے،
उनसे बड़ी कोई वली यही नहीं। हर रोज पढ़ना, हर रोज, एक दिन भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुनाफिक भी नहीं छोड़ते थे पहले, अब तो हमारा हाल देखो कि और गिरा हुआ हाल हो गया है। अब अल्लाह अकबर, हाल ये हो गया हमारा नौजवान का और नौजवान लड़कियों का, और हमारे मेरे शौहर मुनाफिक हूँ तो मैं बचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुनाफिक भी अल्लाह के सामने शिकायत करेगा। अल्लाह, मैं अगर ये काम करता था, ये मेरी बीवी तो थी ना मुझे बोलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं बोली। अगर मैं जन्नत में नहीं जाऊँ तो ये कैसे जाएगी? मेरी माँ नमाज पढ़ती, मुझे नहीं रोकी। मैं अगर मुझे नमाज के लिए कभी नहीं बोली, क्या मेरी माँ जन्नत में जा सकती है? उसके रोकने के लिए उसको औलाद ही है, लेकिन अल्लाह, मेरी माँ पढ़ती थी, मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बनने का हुक्म दिया। याद रखिए, एक मुनाफिक के लिए दुनिया में नुकसान और आखिरत में नुकसान है। उसके साथ रहने वाले लोगों के बड़े खतरे में है। इसीलिए हम चाहें तो अपने आप को उन लिस्ट में डालें कि ऐसे दरमियान लोग के दरमियान डालें कि खुद भी मोमिन बने और अतराफ के लोग भी मोमिन बने। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहली बात क्या पता चली कि अब वो क्या करते हैं, सुस्ती के साथ नमाजों को पढ़ते हैं, लेकिन सुस्ती के साथ पढ़ते हैं। मुनाफिक, हम कितने सुस्ती से पढ़ते हैं नमाजें बताइए? टकाटक तुरंत 5 मिनट में, हमारे 5 सेकंड में हमारी नमाज हो जाती है ना। और दूसरे काम फोन पर आधा घंटा बात कर लेते, तभी हमको पता नहीं चलता। अगर कोई इमाम साहब, अगर कोई मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहे हैं, अगर इमाम साहब अगर थोड़ी सी कर दिया, वो हाथा पैरा जरा ऊपर नीचे कर दे, सूरा अगर ऊपर नीचे हो गया तो पढ़ने लगे हैं तो वहाँ सब, तो हमारे नमाज का क्या हाल है? फजर की नमाज के लिए कैसे उठा करते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जो मुस्लिम अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फजर की नमाज के लिए उठते तो झटका मार के उठते, सुस्ती के साथ नहीं उठते। और हमारा हाल क्या है? आँख को मलते हुए, जरा हार्दा उठाते हुए, जरा बिस्तर को ठीक करते हुए, और पूरा वक्त चला जाता, वो पूरा आखिर का बात रह जाता, लास्ट में 4 ठोके मार के निकल जाते, है ना? बस ही है ना। अल्लाह अकबर। एक और हदीस अल्लाह की नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुनाफिकों के लिए नमाज, फर्ज नमाजें, ये सब बड़ी ग्रह गुजरती है। अक्सर ये नमाज उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। आज हमारा हाल देख लीजिए, नमाज फर्ज कभी कभी तो पढ़ लेते, चलते फिरते, उठते बैठते, कभी कोई भी आए तो, कभी कोई गए तो पढ़ लेते जी। लेकिन फजर की नमाज बिस्तर में रहने देने जी कहाँ से होता? ईसा की नमाज पूछो ही नहीं, 2-2 बजे तक दिन ही नहीं आती हमको, 1-12 बजे तो हम लोग फोनों में रहते, तो कहाँ से आएगी? याद रखिए, अपने आप के लिए मुनाफिक की लिस्ट में मत डालो, नमाजों की हिफाजत करो। जो अपने नमाजों की हिफाजत नहीं कर सकता वो लिख ले कि जन्नत उसके हक में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मेरी जन्नत मेरे पास आए, कि मुझे अपने नमाजों की हिफाजत करनी होगी, सुस्ती और कहली के साथ नहीं। सुस्ती और कहली के साथ पढ़ने वाला वो मुनाफिक है, और पूरी जबरदस्त चुस्ती के साथ पढ़ने वाला कौन है? मोमिन है। पूरा अपने बॉडी को, अपने माइंड को पूरा का पूरा एक साथ रखते हुए अपने रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह। पूरा 5 नमाज़ की पाबंदी करेंगे, 1 की 2 की नहीं। मुसीबत आए तो अब तुरंत छोड़िए, तहज्जुद भी नहीं छोड़नी चाहिए। बीमारी आई, स्कैनिंग कराना है, कुछ भी, तो कोई मुसीबत आ गई, एग्जाम आ गए हमारे बच्चियों के, तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ती। एग्जाम भी जिस दिन लिख के आ गए, उसके बाद जो पैड को जो फेंक देते हैं, जो उसके बाद कभी इनको इधर जानिमाज लेते, कभी इनको जानिमाज उनको दे देते, ऐसे हो जाता ना, लावारिस हो जाते एक दूसरे के मामले में। अल्लाह अकबर। मतलबी नमाज पढ़ने वाले हम आज बन गए, हम लोग सब कोई। अल्लाह के लिए ऐसा जिंदगी मत गुजारो। अल्लाह ने कहा, कितना भी कहूँ, वो काम आपके लिए अहम नहीं है। जो अल्लाह ने आपको जो बुलाया ना, वो आपके लिए अहम काम, अल्लाह ने आवाज दे दी ना, अल्लाह के सामने झुकना है ना, उसके अलावा कोई काम नहीं है। नमाज के बाद ना हमारे शौहर है, ना हमारे बच्चे अहम है, ना हमारे खानदान अहम है, ना कुछ अहम नहीं है। उस वक्त मेरे रब ने आवाज दी, कोई आम जात नहीं आवाज दी, रब ने आवाज दी है। और नमाजों को छोड़ना तो दूर की बात है, सुस्ती के साथ पढ़ने वाले सब की किसकी है बताइए? मुनाफिक की है, सुस्ती के साथ की है। तो सुस्ती के साथ अगर है, फिर छोड़े तो वो तो भूल ही जाओ। तो हाँ, अब यहाँ पे क्या क्लियर हो गई
कि सुस्ती के साथ नमाजों को पढ़ने वाला मुनाफिक है। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इराउन अल्लाह, उन लोगों कितने दिखावा करते हैं, जो दिखावे के लिए हर काम करते हैं, लोगों को वाहवाह चाहने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, दिखावे के लिए वह हर काम करते हैं। आज आप देख लीजिए हमारे अक्सर काम दिखाने के लिए वो नहीं होते हैं। इतना जबरदस्त बड़ा फंक्शन है, आज लोगों को तारीफ करना चाहिए, हमारी बच्ची के साथ ये हुई, ये दिखावे के लिए। तो क्या है बोलिए, 60 ईसा में बनाए हैं, किसके लिए? दिखावे के लिए। बताए भला बताइए, हमारे बेटी को जहाज मिला, इम्तिहान मिला है, उसके लिए दिखावे के लिए? किसके दिखाने के लिए? नहीं करे तो कैसा? लोग क्या बोलेंगे? लोगों के लिए तो क्या, लोगों के लिए तो कर रहे हैं, लोगों के लिए दिखावा है ना। शादी ऐसे नहीं होता, क्या क्या कहेंगे? मैं दीन के मुताबिक चलेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्लाह अकबर। अच्छे ईमान वाले भी अपने आप को बचाने का कहते हैं, ये दिखावे की इस बीमारी से डूब चुके हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी कहते हैं, ए सहाबा, तुम लोग जिस चीज से डरता हो वो शिर्क असगर है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी बोले, फिर ये सवाल किए तो अल्लाह के नबी ने कहा वो रिया है, दिखावा है। आज यहाँ तक कि हम जिस चीज को सुपरमार्केट से सामान लेके आते हैं उसके अंदर भी दिखावा आ गया, कचरे के अंदर दिखावा आ गया ना। ब्रांडेड चीजें खरीदी हमने जी, आज कितने का देखो, कितनी आया जी, देखिए अल्लाह अकबर। ब्रांडेड चीज हम पहनते जी, पहनिए आप, अल्लाह ने आपको अता किया तो पहनिए आप, लोगों के लिए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही हदीस है, जो लोगों को दिखावे के लिए कपड़े पहनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसी दुनिया में जिल्लत का लिबास पहनाएंगे, दुनिया में जिल्लत का लिबास पहनाएंगे। हाँ, लोगों के लिए जब नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए हर चीज अपने अनाम, अपने खुद के लिए, खुद भी नहीं, लोगों के लिए लोग करते हैं। खुद के मुसलमान को कैटेगरी को लोग भूल जाते हैं। लिहाजा अल्लाह के लिए दिखावा नहीं करें। अगर कभी दिखावे का डर भी हो रहा है, कोई ऐसे दुआ करे, हमारे अल्लाह साहब बहुत ज्यादा दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे सिर के असगर से हिफाजत करना, हमारे नस्लों की हिफाजत, अल्लाह से दुआ करना, हमको भी दुआ करनी चाहिए। अगर कोई शक भी आ गया ना, कोई भी लग जाता दिल में यह बात बोला, मैंने ये लोगों के लिए नहीं किया, मैंने अल्लाह के लिए किया, मैंने अल्लाह के लिए करती हूँ, मैंने अल्लाह के लिए करूँगी, देखिए आपका ईमान का लेवल है ना अलग चैन पर चला जाएगा, आपका ईमान का लेवल। ये होता है, शैतान हमारे दिलों में ख्याल डालता है, अरे वाह लोग तुम कितनी तारीफ कर रहे हैं। जरा गौर करिए, कोई हमारी बहन, कोई हमारी माँ जबरदस्त बड़ा फंक्शन आ रही है, बहुत जबरदस्त दावत करे, कोई एक भी औरत तारीफ नहीं की, क्या होता जानते? दिल का हिस्सा छोटा हो जाता है, होता है ना, जिंदगी भर नहीं बोल सकी उन्होंने। अगर हमारी कोई बहन जबरदस्त कोई ड्रेस पहन ली और कोई उसकी तारीफ नहीं करती, दोबारा वो ड्रेस कोई नहीं पहनती, है ना ऐसा? लोगों के लिए तारीफ के लिए, लोगों के लिए, लोगों के वाहवाह के लिए, लोगों के अपने उसके जुबान से अपने अच्छे अल्फाज सुनने के लिए। एक मुसलमान का काम नहीं है, ये मुनाफिकों की सिकत है, यही मुनाफिक की सिकत है। घर में क्या कोई चीज बना रहे तो दुख है, लोग तारीफ करना हमारे कैसा है। बेटियों को जो देख रहे हैं दिखावे के लिए, क्या खानदान में मालूम है मेरी बेटी को कितनी जहेज दी, मालूम है, ऐसे बोलते ना। दिखावे के लिए जो बीमारी है ना, वो बीमारी आपको दुनिया में तो ले डूबेगी, दुनिया ही में ले डूबेगी, जिल्लत और रुसवाई के करने के अलावा दुनिया में आखिरत में तो है ही, दुनिया में भी है, दुनिया में भी है। लिहाजा अल्लाह के लिए इस बीमारी से अपने आप को बचाइए। तीसरी चीज रब्बुल आलमीन ने यह साहब ने क्या कहते हैं, वाला यज़कुरूना इल्लाहु क़लीला, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं लेकिन बहुत थोड़ा। मुनाफिक, कौन मुनाफिक? अल्लाह का जो जिक्र कर नहीं छोड़ते। हमारी जिंदगी अल्लाह के जिक्र से खाली है। अल्लाह का कभी याद है, मुसीबत, बीमारी, परेशानी, मार लग गया, कुछ तो कभी हो गया, या कभी कोई बड़ी या हमारे पर आफत आ गए तो उस वक्त हमको अल्लाह याद आते हैं। लेकिन मुनाफिक अल्लाह को याद करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बहुत थोड़ा। हमारा मामला आज यही चीज हो गया ना, जुमा का जुमा, कुरान बेचारी खुलती है जुमा के जुमा अक्सर लोगों के घरों में, और कई लोगों के घरों में तो पहले ऐसा है बेचारे रमजान के खुले रमजानी कुछ खुलती है ना, ऐसा है ना। ये मुनाफिकों की सिफत है, ये जो अल्लाह का जिक्र करते बहुत थोड़ा, और अल्लाह का जिक्र कर सद करने वाले क्या बोला जाता, ये बढ़िया, ये
लोग बड़े आए, हजाइमा, मोमनी, मौलानी, ये बड़ी अल्लाह वाली है, ये बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, उसके पे खूब बोलते जा रहे हैं, ये बड़ा ईमान वाली आ गई है। हाँ ऐसे बोलते हैं ना। मैं कई लोग तो नाम रख देते, बोला इधर बोला इधर बोला, कई लोग नाम रखते, ये हमारा हाल बन चुका है। हाँ, ये हम लोगों के दरमियान का बात रख रहे हैं। अल्लाह का जिक्र करने वाले का वो लोग होते हैं जो मोमिन है, जो ईमान वाले हैं, जो कभी अल्लाह को नहीं बोलते, न अपने जुबान में बोलते, ना अपना अमाल में बोलते, ना अपने दिल और दिमाग में बोलते हैं। मुनाफिकीन तो जिक्र तो करते लेकिन बहुत थोड़ा, कभी कभार बोलते थे, कभी कभार पढ़ लिए, कभी कभी इस्तेमा में चले गए, कभी कभार हो गया, कभी कभार सदका दे दिए, कभी कभार। कौन है बोलिए? हमारा हाल ये नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कोई भी अमल करो, थोड़ा करो लेकिन मुसलसल करो, लेकिन अल्लाह को वो अमल पसंद है, थोड़ा लेकिन मुसलसल करो। अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाली बने, चलते फिरते अल्लाह को याद करने वाली बनो। ये जिक्र आपके लिए दुनिया में तो है, लेकिन दुनिया में बेकार चीज अपने आप को बचा लीजिएगा, लेकिन जुबान पे जिसका अल्लाह का जिक्र करता है उसके दिमाग पे कभी शैतान हमला नहीं करता, दिमाग पे कभी शैतान हमला नहीं करता। अगर जिसका खाली रहती है उसे सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकायत होते हैं। मेरा एक टॉपिक है इंशाअल्लाह जो आपके डिजाइन किया गया A to Z डिप्रेशन। आज बेटा छोटा स्कूल जाने वाला बच्चा, नर्सरी यूकेजी, उन्हीं भी डिप्रेशन में। अब अम्मा तो छोड़ दो, बीवी तो छोड़ दो, स्कूल तो कॉलेज को छोड़ दो, अभी छोटे बच्चे, उसको किस बात का डिप्रेशन? वो भी डिप्रेशन में, डिप्रेशन पे मरीज बनते जा रहे यूकेजी के बच्चे, LKG के बच्चे। किस वजह से? ये दिल मुर्दा हो गया ना, उसकी वजह से। इसलिए अल्लाह के नबी क्या कहा है, जो अल्लाह को दिल जिंदा है वो दिल मुर्दा है जो अल्लाह को याद नहीं करता, अब वो दिल जिंदा है जो अल्लाह को याद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रात में क्या फरमाया, अला बिज़िक्रा इन्म मिन क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को अगर किसी चीज से सुकून मिल सकता है तो किससे? बोलिए, अल्लाह के जिक्र से मिल सकता है। तो आप कितनी सिफात में आपके दरमियान रख दी बताइए? 3 और 4 कितनी हो गए? 7 रख दी। इसके अलावा कई और सिफत है, बहुत अफवाह फैलाना, फसाद मचाना, मोमिनों को जलील करना, अल्लाह उसके रसूल की बातें करने वाले को दुनिया को फायदे की तरफ ले जाने के लिए दोगलापन आ चुका है ना। दो मुंह के मुनाफिक नहीं होता, सामने एक बार, पीछे एक बार, फोन पे एक बार, पीछे पे नहीं बीजी वो मैं बोल दी थी, नहीं ऐसा नहीं है, वो पीछे भी चलती, पूरी कहानी दोहराती। फिर दो मुंह वाला मुनाफिक होता, मुनाफिक। और मुनाफिक की सजा सुन लीजिए आप यहाँ पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में 45 में बहुत खतरनाक आयत कही है। अल्लाह अकबर, हमारे दिलों को हिलाने के लिए ये आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दार नार वला तज़र नसरुला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, बेशक मुनाफिक कहाँ होंगे? फिद्दार नार, कहाँ वो होंगे? जहन्नम के सबसे आखिरी तले में, सबसे आखिरी तले में, सबसे नीचे तले में होंगे। जहन्नम के सबसे नीचे तले में होंगे वो। चाहे वो का चांस ही नहीं है उनका बचने का, चांस नहीं है बचने का। उसी तरह जन्नत और जहन्नम के जो दर्जे हैं ना, उन दर्जों में आखिरी निचला जो है वो हिस्सा है जिससे जहन्नम खुद अल्लाह से पनाह मांगती है कि अल्लाह तू मुझे इससे बचा ले, इससे वो हिस्से में डाला जाएगा वो मुनाफिक। अल्लाहू अकबर। हमारे हज़रत यूं नहीं डरते थे, ऐसे ही डरते थे। अल्लाह से पनाह क्यों मांगते थे वो लोग? क्योंकि उनको सजा मालूम थी, उनको इल्म था। हमारे सहाबा को सोचिए, जहन्नम इतनी खतरनाक चीज, इतना खतरनाक जिसका गुमान भी हम नहीं कर सकते, उसमें भी जहन्नम के उसके ऊपर से खतरनाक उसका हिस्सा क्या भी कहा चाहेंगे हम कि उस हिस्से में जाएं? हाँ बताइए, नहीं चाहते हम। कभी हमारा दिल गवारा नहीं करेगा कि हमको उसके अंदर डाला जाए, कभी ना हम चाहते। मेरी बहनों, अगर हम नहीं चाहते तो अल्लाह के लिए हम यहाँ से तौबा कर लें। हमारे तौबा की एक चीज रखी जाएगी, हर चीज खोल के रख दी जाएगी। हम कितनी हमारी जिंदगी में झूठ बोलते थे,
थे, कितनी बदअखलाकी करते, कितना लोगों के राज़ों के फास करते थे, कितनी लड़ाई झगड़ा करते थे, हम कितने नमाज में सुस्ती करते थे, दिखावे के लिए क्या क्या करते थे, अल्लाह का जिक्र कितना करते थे। हर चीज की तो पोल खुल जाएगी क़यामत के दिन, हर चीज खुल जाएगी क़यामत के उस दिन के फैसले से बेहतर है कि आज फैसला कर लो कि हो सकता है आज का फैसला आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाए। आज फैसला कर लो, आज फैसला करके उठ लो, चाहे कुछ भी हो जाए। जी ये जो कम से कम ये जो सिफात मेरे अंदर में कुरान और हदीस के ताल्लुक से ये सिफत अब मेरे अंदर तो हम लोग के अंदर तो नहीं होगी। अगर हो गई तो हमारे आखिरी आयत को भी याद कर लीजिए। मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का सामना नहीं कर पाएंगे इन सिफात के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन चेहरे को देखना, उनके चेहरे का दीदार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल कलाम होना जो मौका है वो मुनाफिकों को नसीब नहीं हो सकता। इसीलिए मुनाफिकों को बोला गया ना, बदतरीन मखलूक है, ये बदतरीन मखलूक है। अल्लाह सख्त नापसंद करता है ऐसे लोगों को। लिहाजा अल्लाह का वास्ता, हजारों बार अल्लाह का वास्ता देके कहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को मुनाफिक ना बनने देना। अपनी पहचान एक मुसलमान, एक ईमान मोमिन बनने की शान बनो। मैं मोमिन हूँ, मेरी जात झूठ में नहीं आ सकती, मेरी जात में बदअखलाकी नहीं आ सकता, मेरी जात में कभी नमाज नहीं छूट सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अव्वल वक्त मुझे नमाज पढ़ना है, वक्त को डिले भी नहीं करना, क्योंकि मुनाफिक क्या करता, पूरे डिले को वक्त को डिले कर देता, आखिरी वक्त सुस्ती के साथ पढ़ता। और कभी हमारी नमाज कभी किसी सम रीजन की वजह से अगर हम छूट भी जाए, कज़ा हो जाए, लेकिन वो कज़ा हमारी आदत नहीं बन सकती। पहली बार तो हमारी कज़ा होनी नहीं चाहिए। अगर कुछ रीजन से बाकी शरीक वजह से कुछ हो गया, कज़ा हो गया, तो एक मोमिन की वो कज़ा वाली नमाज के वो आदत नहीं बनाना चाहिए। मुनाफिक हमेशा बहाने बनाते हैं, क्यों नहीं करें, अब क्यों सच नहीं बोले, तो हमेशा बहाना बनाते रहता कि बिकॉज ऑफ दिस दैट, ये वो लन फन, इसके वजह से उसके वजह से ये मजबूरी वो मजबूरी आ जाती। मोमिन हमेशा पाक साफ, हमने पढ़ा ना, अनदीन नसीहा, खालिस दीन है, खालिस दीन है। मैं अपने आईना इतना क्लीन रखूं कि अपने आप को देख पाऊं कि कितनी क्लीन हूं, एक दाग भी नहीं होना मेरे ऊपर, दाग ना एकदम एक भी नहीं होना। लेकिन वाह, कोई बचा पाएगा अपने आप को, अपने गुनाहों को लोगों को ना बताने से? बताइए। अल्लाह से दुआ करिए कि आज तक जो हमसे गुनाह हो गए, आज अल्लाह आज के बाद कोई कभी इन गुनाहों के पास नहीं भेजना, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह हमको जिंदगी में जितने तू नेमतें दिया ना अल्लाह, उस नेमत को तेरा शुक्र करने वाला बना ले अल्लाह। गुनाहों की तरफ, बुराइयों की तरफ, हर दर्द से जितना हो सके तू हमको बचा ले, हम सबको बचा ले। अल्लाह को कायर है कि अल्लाह बचाएंगे। अल्लाह का कुदरत रखता है, जब बंदा जब कोई चीज चाहता है अल्लाह उसके हक में जरूर फैसला करता है। अगर वो बंदा ही नहीं चाहता, अगर वो बंदा ही नहीं चेंज होता, अल्लाह भी उस बंदे को चेंज नहीं करते। अल्लाह ने कुछ सूरी हुक्म में कहा था, जो कौम अपने आप को नहीं बदलती अल्लाह भी उस कौम की हालत को नहीं बदलता। हम अपने आप को आप बदलेंगे, यहाँ बदलो, इसी वक्त बदलो, इसी देखने से पहले बदल लीजिए। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम चेंज, अब मैं बदल गई। अल्लाह तू जैसे जिंदगी बोलते गए, मुनाफिक वाली जिंदगी तो मेरी नहीं हो सकती। अल्लाह नहीं होगी इंशाअल्लाह, नहीं होगी इंशाअल्लाह। यहीं पे मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगी। आखिरी रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन डबल स्टैंडर्ड लोग ना बनाए, दोगले इंसान ना बनाए, हमारी फितरत को दोहरी फितरत ना बनाए, हमारी आखिरी पक्के सच्चे मुसलमान बनाए और हमारी पूरी जिंदगी रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पे गुजारने वाले बनाए, तौहीद मुबारक गुजारने वाले बनाए। शिर्क से हमको हमारी नस्लों को महफूज रखे और जब तक जिंदगी दे उस जिंदगी को कुरान से जोड़ने वाले बने। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, हम क्लियर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।